15% of major heart attacks are of these chest pains when you have are actually acute myocardial infarction. So if you assume कि पांच लोग अगर heart attack की complaint से chest pain की complaint से they are reaching emergency department, out of that one will have a massive heart attack. And then others may have, other one or two patients will have not massive heart attack, but what is called as unstable angina, which is a minor heart attack in the vernacular language, as you call it. Atypical presentation, I said, are again pretty common. So basically, you have the whole spectrum of what is defined as acute coronary syndrome, means heart key acute condition. So coronary condition, the blood flow problem. So basically, how I explain it to my vernacular villagers in their vernacular language is like कि आपका हार्ट आपका शरीर जो है वो एक खेत है और उसमें पानी डालने के लिए आपका हार्ट है जो पंप है और उसको खुद को चलने के लिए जो चाहिए वो हार्ट की नहीं है. So the heart that supplies blood to whole body requires its own blood supply to run and work efficiently. So like the electrical power, you have electrical system in the heart, you have blood supply in the heart, which is again two separate things. So you have bearings in the motors, as you know, and you have electrical supply, which is the current system where you need the pacemakers. That's the one way of explaining things to my patients. So when you look at the spectrum of disorders that can exist for a patient from the blood supply issues are categorized as acute coronary syndrome. So there's a wide spectrum of it, which refers to extending from initial decrease in supply without actually having an injury. What does it mean? Heart attack का मतलब क्या? Attack किसको? Muscle is what is getting attacked. How is it getting attacked? By not getting supply. It's like choking your nose or choking your throat. And how you feel discomfort. The same kind of discomfort the muscle feels when it does not get the blood supply. If the blood supply is choked completely, what you get is a major heart attack. If it's partially like a 95%, 99% kind of a block, and there's still some trickle of flow, you will still get what is called as a minor heart attack. And this is also part of a heart attack, which you call as acute coronary syndrome. So a new onset of chest pain. So it is, if you all guys know from the basic principles of physics and thermodynamics, that turbulence in a pipe will not occur unless the obstruction to the flow in the terms of area is not more than 70%. So up to 70%, the flow can still happen through the pipes, like the blockages. But if the block is more than 70 to 80%, that's when the flow starts decreasing, and that's when the muscle says, I need more blood, and what amount of activity the muscle of the heart is doing. तो उसको जब 70% प्लस से ब्लॉक होता है तो it starts complaining to you. आप जब चलते हैं तो आपको दर्द होता है, दौड़ते हैं तो पेन होता है, या severe discomfort होता है, आप रुक जाते हैं. This is called as angina. This is the symptom or first complaint that it is trying to bring your attention to. So, when you look at the spectrum of this, it starts from the unstable angina to the MST-MI and to ST elevation MI. And in India, and this is pre-COVID, the prevalence was supposed to be 3 million per year, which is a huge number. That's the number of patients who get heart attack. And as I was saying, that we are getting a lot of patients who come very early. There are a lot of papers that are talking that COVID increased the risk. There are papers that are talking about, research papers talking about, and the mRNA vaccines be responsible for creating it. I'm so glad that our government took a decision that we are going to go indigenous and we're not adopting a technology that was very barely started before it was launched in our part of the world. And that's why probably even if that was the case, if somebody could find out some other vaccine which was based on mRNA, at least if that has some implications, probably not going to harm our population. But yes, we are seeing patients that have been rising, and that's a topic that probably we can take in question and answer session. But the WHO is saying that the CAD is increasing in India. We are expected to be the world diabetes capital. We are expected to be world hypertension capital. We are going to be coronary artery disease capital of the world as well, which is not something to be proud of. We are going to become one of the largest economy. That's why we are already heading towards becoming the third largest economy, but we surely don't want to become the world capital of diabetes or heart attack for sure. Now, when the patient comes with pain, it can be, as I said, it can be typical exertional, that when the patient gets chest heaviness when he's walking, or he gets atypical, as I said, gas लग रही है, acidity लग रही है, अच्छा नहीं लग रहा है, घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, मजा नहीं आ रहा है. These are some vague ways how patients can come and tell you. They will not come. Patients are not reading your textbook of cardiology. They will not come and tell you, sir, I have got angina. You have to be very specific in out their atypical presentations. Prevent all goals going in. He may be good in saving that very bad
David Beckham kicks, but he needs to also prevent small balls also being let in. And for that, the chest pain that can be a mimic also needs to be picked up. Aortic dissection, pericarditis, esophageal spasm, and esophageal rupture or microbial collapse are some of the differential. As I said, not all chest pains over the heart are responsible for heart attack. So some pains you can have a small fracture of the rib or unloaded part that also can be responsible for chest pain. Same way, if you have acidity, actually can be responsible for it. But there's something called as linked angina, when you have reflux esophagitis and patient gets chest pain. And chest pain can also be caused by multiple other causes, like pneumonia, like filling of the air in the pleural cavity, which is called as pneumothorax, or inflammation of the layer of the heart, the skin of the heart, which is called pericardium, which is called as pericarditis, or there may be inflammation of the pleural spaces, which is pleurisy, or what you call as pleural effusion. As I said, costocerebral syndrome, costochondritis, lot of viral infection can cause swelling of the joint of the ribs, which is the costochondral junction, can get inflamed, and that local tenderness may be responsible and may not be because of the heart attack that you get in chest pain. But as I said, it's not these causes which are worrisome, they will not kill somebody. What will kill is a heart attack. So how do you then differentiate? Is a heart attack क्या होता है, angina क्या होता है? So basically दोनों एक spectrum है, लेकिन उसको differentiate करने का तरीका क्या है? So what Sood sir was saying, that what you need to know, if your pain is persisting for more than 15 minutes, that's when you start suspecting that you need to evaluate it. Because 2 मिनट लगता है चला जाता है, 2 सेकंड लगता है चला जाता है, is usually not visible angina. Because muscle, when it does not get blood supply, it gives you and releases certain cytotoxic agents, painful nociceptive agents, which will give pain in a chemical fashion, not as a mechanical fashion. So that chemical clearance, unless it happens, the receptors that are triggered will take some time for the pain to dissipate or to begin for that matter. So if for a heart attack, angina pain usually does not last between 15 to more than 15 to 20 minutes. Means you have a pain when you're walking, exerting, you get chest heaviness, you stop, the pain disappears in a couple of minutes. That's angina, which means it's a warning sign. It is, I explain to my patients, सांप आया था, काट के नहीं गया, छू के चला गया. That's your angina. Or सांप आया और काट के गया, that is heart attack. So when you're bitten, when your muscles are injured, the muscle is getting flow, which is hampered, and the blood flow is not restored. The pain is usually gradual and in onset, and it's radiating, as I said, usually anywhere from the jaw to umbilicus and the left shoulder or left arm, or sometimes both arms, it can be there. Some other causes of chest pain would include aortic dissection, which is equally life-threatening. What is aortic dissection? Blood pressure की वजह से या चोट की वजह से या किसी और कारणों से, like genetic disorder, the wall of the aorta, the blood vessel which carries blood to the whole of the body, will have a small tear inside it without actually completely rupturing. And hence this tear will give rise to a false lumen, a false passage being created, which will steal the blood. And not only that, it has a risk that it can rupture and create what is called as aneurysm. This is one of the most severest pain, usually between the two back, on the back side, between the two scapula, usually constant, it will not be relieved, and there will be difference in the blood pressure if the limbs are involved. And hence this kind of a pain you should again suspect very strongly. Pulmonary embolism is another cause that we saw a lot of times in COVID. In COVID, people used to get clot in their legs, and this, what is called as DVT, would then dislodge and go to their pulmonary circuit, which is in the lungs. So lungs will get oxygen that you are breathing, but the blood will have a clot so that the oxygen is not getting exchanged from the lung to the blood, so that the oxygenation is hampered. So this was the mechanism that was happening and triggering a lot of times in COVID. But pulmonary embolism can happen even without COVID. So this pulmonary embolism can, when it causes a lung infarct, can also present with pleuritic pain, with dyspnea, and pneumothorax is filling of the air, which is usually traumatic. So how do you assess it? Firstly, and the foremost thing, ground zero, and the zero level response, and as I was saying, you need to have what is called as the golden hour, pehla ghanta. It is said that if you look at the damage that happens beyond 6 hours, almost all of the muscle is gone, and the territory where the blood supply is. So it's good to get it open as soon as you can, if you can diagnose. And for that, the timelines that are given are very strong. That means 10 minutes के अंदर the patient should get an ECG once he walks into a hospital. And in those 10 minutes, the diagnosis should be made what he needs. So triage should be completed in 10 to 15 minutes. So once the patient has come, once you suspect that you have a chest pain, it's not getting relieved,
and you think there's probably a heart attack, then you should get yourself tested to the first medical contact. You reach, and at that time you will have a vitals assessed, means your pulse, BP will be checked. They may take your access, send your blood tests. So what are these blood tests? So very simple tests that we now often do in triaging these patients to differentiate whether they are critical or not is in emergency say biomarkers. What are biomarkers? These are small blood tests which can pick up whether the ongoing heart attack is there or not. So these tests are CPK, and troponin-like blood tests, which can tell you if the myocardial injury has started or not. Also, some coagulation profile or electrolytes can be sent. 20 ECG most of the times will pick it up, especially if it's a massive part. Otherwise, sometimes a normal ECG can be present, especially in first 10 to 15 minutes. So usually it's a combination of both. You need an ECG, you need a blood test, and you may need an echo. And if worst case, if it's required, apart from a good clinical assessment, you may, if required to confirm, may undergo an angiography. So how the 12 lead ECG picks up is by looking at whether you have ST elevation or if there are ST depressions or it is normal. So that will help you if you have a normal ECG and your blood reports are normal, then and echo is normal and the symptoms are atypical, these patients can be sent back home with medications if required. But if any of the three are abnormal, then you have to work up it further in form of either a CT angiogram if it's a low probability test or an invasive angiogram if it's a high probability of getting a heart attack. So this is the blood test. This is how they rise. This is the problem actually with the biomarkers, that even when you're presenting as early as 30 minutes, these blood reports will also come out. Your cardiac biomarkers will take time for each to reach to the circulation. So this is the first 30 minutes when strong clinical suspicion, good observation, and sometimes these patients are then told to be kept in observation. They repeat the blood test after 12 hours or 6 hours and see if the biomarkers are changing or not. If it does not change, then you can hold on, then you can send the patient back home. Else you need to hospitalize them and do an invasive work. So previously it was EPKMD that was done, but now they are more specific, but troponins are very sensitive. They rise much more. They rise for longer duration, and the LDH and EST are hardly used as an enzyme. So this is the basic algorithm, as we say, how you approach a patient of chest pain. So when you have a chest pain, first is try to get it tested if the pain is persistent more than 10 to 15 minutes. If you have perspiration, breathlessness, coughing, associated radiation of the pain, vomiting, these are another features that will tell you that this is something not to be taken lightly and you need to rush. And then you need an ECG. So if ECG is normal, or what is called as non-ischemic, then and the patient is a known cardiac patient, in that case also, despite a normal ECG, you will work up it further. How? By sending the troponin, as I said. And it has to be less than 99%, in which case also, if you have, like you had this angioplasty done, 2 stents put previously, now you have got a chest pain, ECG is still the same, but still you get a troponin done. If, however, the patient does not have any past history, then there are certain scoring systems, what is called as a heart score. So this is a small, if you can search out in the apps, there are multiple ways to assessing. There is another scoring system apart from heart score, which can be done. And in those patients who have a low score, if there is no diaphoresis, no tachycardia, blood pressure is normal, pulse is normal, saturation is normal, pain is not typical, no family history, no other risk factors, then you can go ahead and then early discharge can be planned. But if the patient has got ECG itself abnormal, then you need not wait for blood reports. The patient actually goes on for further revascularization strategies. So this is some of the important timelines that we talk about in heart attack, which is once you have a patient who's come with a heart attack, you need to get his arteries open. There are 2 ways to open his arteries. One, you give an injection which is blood thinner, dissolve the clot that has developed, and let the artery perfuse. Or the other way is mechanically open it up, which is angiography and angioplasty, which is what we do. So we put a catheter in, go to the heart, hook the coronary artery, and take the clot out, or dilate it and we put a stent there if required. The golden timeline that has been defined is that you need to have your artery opened within 90 minutes. It's given that you have 30 minutes window to get yourself assessed, diagnosed, and shifted. And another 1 hour, you tend to get it either opened mechanically or chemically, and then transcatheter maximum, if you reach, say, your clinic where they don't have cath lab, you in that case also should get your artery opened within 2 hours, which is 120 minutes. And again,
Deed of time is door in to door out time, means the time that you spend to move from a non-cath lab center to a cath lab center where angioplasty can be done should be 30 minutes. 30 minutes is the time that you spend. You don't spend time in, मैं रिपोर्ट लेके आता हूँ, भांजे को फोन किया है, भतीजी डॉक्टर है लेकिन अभी वो मेरी फोन नहीं उठा रही है. Don't spend those times. Trust your doctor. If you have suspicion, as I said, it's good to err on the wrong side. Worst case, you get an angiogram, it will be normal. That's it. But if you miss it out, you don't get a second chance. Life is only once and precious one. And so urgent transfer would be better for such cases where there is ECG confirmation, you've got a heart attack, it's diagnosed on an electrocardiogram, and then there is no reason for you to spend time and wait. So when that is to be planned, what is the primary treatment that can be done at your place? You cannot always think of getting Dr. Sharma in to put your catheter and start it before you actually do something. What are those things that can be done? So you need to have certain tablets. Now these tablets should be under supervision of your doctor. Don't overtake it or undertake it because you may take a wrong drug. Suppose you have a lactic ulcer and you've taken a blood thinner and you then are actually bleeding in a lactic ulcer and you end up with vomiting of blood because you've treated your blood unnecessarily. So aspirin, clopidogrel, and atorvastatin are three pills that are loaded, but only if the suspicion is for heart attack or confirmation is there. Again, this is to be done based on the dosages of 325 of aspirin, 75 milligram of clopidogrel. If you're doing a PCI, you need to load 8 tablets, which is like 600 milligrams. Or if you're not doing an angioplasty, then 4 tablets, which is 300 milligrams, and atorvastatin, which is a cholesterol lowering agent, which is to be given 80 milligrams. So these are loaded, and of course, sorbitrate, which you give, is not to be given in a patient who's got low blood pressure. So ये tendency होती है, पापा की sorbitrate रखी, मुझे chest pain हुआ, मैंने ये कर दिया. Don't do that mistake because in inferior wall MI, which is a heart attack of the lower wall of the heart, if the right ventricle is involved, the pressure will fall even further. So आप जो 100 BP वाले होंगे, sorbitrate अगर आपने inferior wall में लिया, your pressure will fall to 70 and now you become symptomatic. So sorbitrate, like drugs which are given sublingual, is to be avoided in inferior RD wall MI. So you need to confirm if the anterior wall MI you can take. And how many can you take? If मेरे को पेन ठीक नहीं हुआ, उसके मैंने दूसरी ली, तीसरी ली, चौथी ली, so your blood pressure falls. So don't take more than 3 max, again under doctor supervision, only to be repeated after 5 minutes at least. Give some gap between the 3 pills that you take sublingually. So once you've loaded them with these drugs, which is the P2Y inhibitors and which is clopidogrel or prasugrel or ticagrelor, between the 3 drugs also, there are some groups that you can give some drugs and some you can't. For example, if you are a case for bypass and the angiography is not yet done, or suppose angiography is planned and you don't know what kind of blockage it is done, you cannot give prasugrel. Prasugrel is only to be given if the patient is dedicated for an angioplasty. So prasugrel is a drug of a cardiologist doing an angioplasty. That way you can remember it's out from your syllabus if you're not doing an angioplasty. You have ticagrelor and you have clopidogrel. Of course, aspirin you can give and you can give atorvastatin. Both is required. Yes, both are blood thinners, and actually it's shown that when you give both together, a lot of patients will benefit more, and hence the platelets, which are the central of occurrence of heart attack, क्यों होता है heart attack? Of course, there are cholesterol deposits which are responsible, but now there are studies which have shown कि आपको अंदर arteries में what you are seeing इसका कुछ नहीं था, ना diabetes था, ना blood pressure था, ना cholesterol था, family में भी किसी को नहीं था, अच्छे खासे गिरते थे, रात को बाहर गए, एकदम से heart attack collapse हो गया, क्या हुआ? So this is plaque rupture or plaque erosion, which means the blockage was not tight enough. Suddenly, the layer of the heart or vessel, which is the endothelia, it ruptured, bringing in the platelets to clot it. So whenever there is endothelial breach, the platelets they come in and try to block that, and this becomes dysregulated, unregulated. It's like you call one person to fix something, and the whole crowd comes in and creates a chaos. So you need platelets only to be blocking the erosion of the endothelia. What happens is that it is unregulated, it continues, and that it ends up creating a complete blockage of that plaque erosion. And this is found in almost 30% of heart attacks. The plaque erosion is increasing of late, and that's the reason you find a lot of sudden heart attacks. And this plaque erosion need not be because of a cholesterol deposit, can be because of shear stress. We heard बहुत severe activity करी थी, बहुत marathon दौड़ा, and then he collapsed. Or there you heard बहुत activity gym, you have heard of TV stars, work out in a gym and he collapsed.
So what is these? These are clot erosion. They have sudden rise in pressure, increased heart rate and blood pressure, increased force with which the blood is passing through the vessels, and it tears through. Shear stress causes the lining of the vessels to be eroded, and that's when the platelets come in and start clogging the vessels, and they cause complete occlusion. So you want to basically block these platelets, and that's where these are the various pathways that I've shown here. To keep it very simple, you want to block it either with the COX-1 inhibitors, which is aspirin, ADP receptors, which is the B2Y12 receptor, which is clopidogrel, and then you have inhibition of fibrin and thrombin. Thrombin is lysis. जब आप उसका clot बनता है, जो mesh बनती है, उसको dissolve करने के लिए you give blood thinners like streptokinase, urokinase, and now you PPA, and reteplase and epinephrine, which are very easy to administer and more efficacious. And then you have anti-thrombotic drugs like heparin, etc. So these are all the drugs, how they act. This is that one virus-like looking platelet, which is actually good for us. प्लेटलेट के पीछे आप देखिए कम हो जाता है तो भी परेशान होते हैं जो अभी चल रहा है. But these are the platelets that you need. So excess of everything is bad. You need everything in balance, and this is the platelet that you actually try to block. That's why patient gets dengue and low platelet. You actually take off the drugs which are blood inhibitors, blood thinners as you call. And these are the various drugs. You have cangrelor, clopidogrel, prasugrel, ticagrelor, clopidogrel. Vorapexor is also available in US, not available in India. Abciximab, actifidine, teriflunomide are mainly used now with the new generation of drug-eluting stents, and aspirin, of course. So these are the various studies and trials that have been done, and these are the various properties. These are very long-acting drugs. They don't stop working immediately. They have action for 2 to 3 days. So that's why when you have a surgery, prostate surgery, karani, GI surgery, karani, so your surgeon will say, go and meet your cardiologist if you can stop these blood thinners. We don't want you to bleed. And that's why sometimes you have to balance out the two. You don't want your stents to get clogged, and you also want your surgery not to bleed, and you have to balance between the two. That itself is a separate topic, not a topic of today. Maybe some other day we'll discuss that. But cangrelor and abciximab are pretty the shortest and the longest acting drug. Cangrelor is one drug which is injectable, जिसको हम इस तरह से यूज करते हैं. आपने चालू किया infusion, it is working. You stop it, the action is gone. Platelets are back to working normal. So this is one of the shortest, quickest acting drug. And the moment you stop it, it's no more causing a bleeding. So we use it in the operation theater very often. Abciximab is a very long acting drug. If you bleed on abciximab, to stop that bleed may be a problem. So basically the antiplatelets are something that we commonly use. Clopidogrel से आजकल ticagrelor and prasugrel are known to be much superior, and that's what we commonly use now because the clopidogrel resistance is also known. Tretantini was a trial where the prasugrel was known to be superior, but you cannot use it in bypass patients, and ticagrelor was equivalent to clopidogrel, and it can be used both for medical management as well as patients who don't require or require angioplasty. So to summarize for the antiplatelet group or confusion होता है, stable coronary or ओम शांति ओम शांति ओम शांति. कौन मेरा कौन और मुझे कहाँ जाना. तो ये ओम शांति जानकी दीदी ने बताया. और एक आजकल और एक चीज को शांत करने की जरूरत है, वो क्या है. नहीं, एक नया आया है, मन तो पहले भी था, मोबाइल. ठीक ना, तो उसको भी आप शांत कर दीजिए. तो ये प्रोग्राम हम अच्छे से मजा ले पाएंगे. हमारे साथ जो भाई जी आए हुए हैं, कुमार शर्मा जी आए हैं, डॉक्टर कुमार शर्मा, उनको अच्छे से सुनेंगे. तो कमल शर्मा जी का स्वागत करने के लिए हम एक सॉन्ग जो है
वो प्ले करेंगे। उससे पहले वापिस एक बार चेक कर लीजिएगा अपना फोन, और जैसे आपने बताया मन, बाबा ने बताया है, वो मन को भी शांत करके हम बैठेंगे। आप सब लोगों को ये पता होगा, काफी सारे ऑनलाइन भी सर्टिफिकेट ऑनलाइन भी काफी जुड़े हुए हैं। सो क्योंकि काफी लोग आ नहीं पा रहे थे जुड़े थे कि ऑनलाइन, तो ये रिक्वेस्ट हमने की हुई थी कि ऑनलाइन भी हमारे पास सारी रिक्वेस्ट ऑनलाइन भी हैं, या वो ऐसा लाइव भी लाइव हो रहा है। तो जैसे हमें पता है कि बाबा हमारे सूक्ष्म दिल में कौन रहता है? हमारे दिल में कौन रहता है? अच्छे से बोलो ना। शिव बाबा। ओके, तो शिव बाबा क्या करता है रोज सुबह? अपने दिल को साफ करता है ना, सूक्ष्म रीति से। तो आज हमारे साथ स्थूल रूप में जो दिल है, वहां पे दिलाराम बैठा हुआ है, तो उसको भी साफ सफाई करके रखना पड़ेगा, तंदुरुस्त रखना पड़ेगा। तो उसके लिए आज स्पेशल बाबा ने बोला है कि अभी भी काफी लोग यहाँ पे मेरे बच्चे हैं, उनका दिल जो है ना वैसे तो प्यार से साफ है, लेकिन स्थूल रूप में उसकी सफाई की जरूरत है। इसलिए आज हमारे साथ डॉक्टर कमल भाई जी आए हैं। दीपश्री अगर रेडी हैं तो इनको वेलकम करेंगे सॉन्ग के साथ। दीपश्री। So
दीपश्री ने डॉक्टर कमल शर्मा जी के लिए कुछ लाइन्स लिखी हुई है, तो वो पढ़ के सुनाएंगे। दिन रात दौड़ते इस दुनिया में क्या आपको अपनी परवाह भी है? औरों की खुशी में खुश हैं आप, क्या इससे ज्यादा कुछ चाह भी है? नम आंखों की मुस्कान है आप, तब त्याग की पहचान है आप, उम्मीद है सबकी, सबकी दिलासाएं हैं आप, ईश्वर तो नहीं पर ईश्वर जैसे हैं आप। थैंक यू। बहुत प्यारी लाइन लिखी हुई है। सही मायने में खुदा के बाद में जो दूसरा नंबर आता है, खुदा जिसके थ्रू काम करता है वो एक डॉक्टर होता है और वही आप लाइफ बचाते हैं सबकी। तो दीपश्री बहुत ही प्यारी लाइन लिखी आपने। अभी हम कोई भी कार्य हम शुरुआत करते हैं तो दीप प्रज्वलन से करते हैं। जो दीप एक सूचित है कि हमें ज्ञान देता है, ठीक है, जो अंधकार से रोशनी में लाता है और हमें रास्ता दिखाता है। तो वही चीज के साथ हम आज दीप प्रज्वलन करेंगे। और शोभना दीदी, भाई जी, दीपक मिश्रा जी आप आएंगे और या सत्यनारायण भाई जी आप आएंगे और हमारे डॉक्टर साहब जो हैं वो आज दीप प्रज्वलन करेंगे। जो निराशा को आशा देता है, जो किसी को रास्ता दिखाता है, किसी को सच और झूठ की पहचान कराता है। एक लाइट हाउस होता है जो मझधार में फंसा हुआ एक मुसाफिर होता है, उसको रास्ता दिखाता है, उसका घर कहाँ पे है, कौन सी दिशा में जाना है, वो बताता है। तो ऐसे दीप प्रज्वलन के साथ आज संक्षिप्त में जैसे आपने इनविटेशन जब भेजा था उसमें आपने सबने देखा है, पढ़ा है, तो फिर से एक मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ डॉक्टर कमल शर्मा जी का। वो सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं। वो साल और यूएन मेहता जो हॉस्पिटल है वहाँ पे अपना सर्विस दे रहे हैं। बीजे मेडिकल कॉलेज में साथ साथ में आप देखें, मतलब जब मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ तो आप ये जरूर गौर कीजिएगा कि मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी जो होती है, जो हर क्षेत्र में अपना प्रभाव छोड़ती है और हर क्षेत्र को कुछ न कुछ मतलब अपना योगदान देते हैं। तो जैसे बीजे मेडिकल कॉलेज में वो एकेडमिक्स में भी और मेडिकल कॉलेज में पढ़ाते हैं। इन्होंने 22 गोल्ड मेडल हासिल किए हुए हैं अपना। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि मेडिकल फील्ड के अलावा एकेडमिक्स में भी पहले से ही वो ऐसे हंसती रहे हैं। 205 जितने उनके पब्लिकेशंस हैं, 8 बुक्स लिखी हुई हैं और बहुत ही सुंदर अगर बात करें तो टीचिंग में जो आज हमें भी कुछ सिखाने जा रहे हैं, तो वैसे टीचिंग में एकेडमिक्स में गुजरात यूनिवर्सिटी ने उनको अवार्ड भी दिया हुआ है। ऐसे हमारे भाई जी हमारे साथ हैं। सिर्फ एक ऐसे कार्डियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने सिविल सर्विसेज एग्जाम जो हाईएस्ट एग्जाम होती है आईएएस आईपीएस की, वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर ली हुई है। एक मास्टर ऐसे डॉक्टर हैं। सो ऐसे हमारे डॉक्टर कमल शर्मा जी से मैं निवेदन करूंगा
कि आज आप हमारी शाम रोशन करें और हमें बताएं। तो उससे पहले मैं दीदी से रिक्वेस्ट करूंगा, शोभना दीदी से, कि भाई जी का तिलक से स्वागत करेंगे। और यहाँ की जैसे भाई जी डॉक्टर भाई जी एक परंपरा हमारी है, ब्रह्मा कुमारी, इसमें हम तिलक और युग से स्वागत करते हैं। बाबा के घर जो आते हैं वो एक हम सभी की ओर यस हम सभी की ओर से ब्रह्मा कुमारी परिवार से सो एक सॉन्ग प्ले करेंगे भाई जी। हमारे एक सॉन्ग के बाद में हम बाबा को याद करते हैं, उसके बाद में हम आप स्पीच स्टार्ट करें। झलक तुम्हारी तो प्यारे भगवान, पलक में भर के दिखा रहे फलक से हम यही गा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। झलक तुम्हारी जो प्यारी भगवान, पलक में भर के दिखा रहे फलक से हम यही गा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। करनहार हम किए जा रहे। ओ झलक तुम्हारी जो प्यारे भगवान। करन करावन हार तुम्ही हो, तुम्ही तो करते तुम्ही कराते। बने हैं हम तो निमित्त केवल, हम अपनी उंगली पर लगाते। उठा के अपने हाथों को वरदान, हमारी रक्षा किए जा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे।
वो अपना इम्पोर्टेंट समय निकाल के यहाँ पे आए हैं, इतने बिजी शेड्यूल से निकाल के आए हैं। तो ऐसे डॉक्टर कमल भाई जी से बोलेंगे। सो मुस्कुराते हुए चेहरे, आर्ट की बात कर रहे हैं। आर्ट अभी डॉक्टर साहब जो बता रहे हैं उससे पहले हम ये चीज बता दें कि हार्ट तभी स्माइल करता है जब हमारे चेहरे पे स्माइल आती है। तो सबके चेहरे पे स्माइल हो। ओवर टू ओम शांति। आप सबका बहुत बहुत आभार मुझे बुलाने के लिए। वैसे जब दीपक जी ने कहा कि आपको एक घंटा निकालना होगा मेरे लिए, सबके लिए, तो थोड़ा तो आपकी समय अनुकूलता और मेरी समय अनुकूलता दोनों मुझे देखनी थी। पर फिर जो आपकी समय अनुकूलता थी उसमें मुझे मेरी समय अनुकूलता डालनी थी, तो मैंने आपकी समय अनुकूलता में आने का प्रयास किया। हालांकि मैंने पहले से कह रखा था कि मैं 7 बजे ही पहुंच पाऊंगा, पर शायद प्रोग्राम का समय आपका फिक्स 6 से 8 ही होता है। तो पहली बात ये थी हिंदी, गुजराती के इंग्लिश के भाई तमिल तेलुगु के संस्कृत वाला और बात ऊंचा कर जो મને બે ત્રણ લેંગ્વેજ આવડે છે, હિન્દી, ગુજરાતી અને ઇંગ્લિશ। हिंदी तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर आप आए हो इसके लिए। अच्छा, હવે વન વે ડાયલોગ કે મોનોલોગ? પ્રશ્નોના સવાલ કરી કે હું એક બાજુ ભાષણ આપું? કેમ કે शिक्षकों ने बात करी, जो बात हुई थी दो तरह के, जैसे सर आप बताएं तो जैसा आप चाहें। तो डायलॉग यानी आप भी बोलेंगे मैं भी बोलूंगा, बहुत ज्यादा ठीक रहेगा। तो कुछ चीजें जो दिल के बारे में जाननी होगी, जो मुझे लगता है मुझे मेरी तरफ से भेजनी है, वो मैं जरूर भेज दूंगा आपके पास। बाकी आप मुझे पूछेंगे उसके मैं जवाब दूंगा, वो ज्यादा बेहतर है। जैसे आप दीदी के पास आते हैं तो दीदी सिर्फ आपको एक साइड का प्रवचन बिल्कुल नहीं देती, वो आपसे पूछती है आपकी तकलीफ बताइए, आपके कष्ट बताइए, आप क्या महसूस कर रहे हैं, आप क्या फील कर रहे हैं, आप क्या चाहते हैं, आप बोलते हैं। फिर आप 10 मिनट बोलते हैं, दीदी 5 मिनट में उसका सार करके और आपको जवाब देंगे। तो आपके सवाल और बने तो वहां तक जो मैं जवाब आपको दे सकता हूँ देने की कोशिश करें। तो स्लाइड चेंजर मिलेगा या मुझे आपको बोलना होगा स्लाइड चेंज? तो कैन यू गो टू नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो बेसिक एक अब इस देश में कहते हैं कि भाई अब 65% लोग पढ़े लिखे हो गए, पर दो तरह के लोग होते हैं, पढ़े लिखे पर गंवार और अनपढ़ पर समझदार। एक से साक्षरता, अक्षर समझ पड़ती है लेकिन बुद्धि में नहीं दौड़ती है। तो ऐसे बहुत लोग हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता लेकिन समझना है। तो उस हिसाब से जब हमारे पास हमारा मरीज आता है, तो अगर मैं उसको अंग्रेजी में बोलूं, heart has got 4 chambers, there is an atrium and ventricle in your left anterior artery descending is 100% occluded and 90 put a stent and 90%, लेकिन क्या समझ आएगा? कुछ नहीं समझ। या उसको बोलो તમારી पेसमेकर મૂકવું પડશે, વેદનાનો ऑपरेशन આવશે, 4 टाका આવશે, सारे पास सोच व्हाट इज दिस, क्या हो रहा है, आप मुझे समझा। तो मैं देसी भाषा में जब हमारे पास हमारा मरीज आता है तो उसको एक सिंपल उदाहरण देकर समझाता हूँ कि दिल आपका एक मोटर है और आपका शरीर एक खेत है। इस खेत में पानी पहुंचना चाहिए, तो ये हृष्ट पुष्ट रहेगा, आपका शरीर तंदुरुस्त रहेगा। शरीर को तंदुरुस्त रहने के लिए खून पहुंचना चाहिए। अगर आपके पैर में खून नहीं पहुंचता है तो पैर सड़ जाता है, आपके दिमाग में खून नहीं पहुंचता तो लकवा हो जाता है, आपके आंतड़ियों में खून नहीं पहुंचता है तो गैस हो जाती है, आपके दिल को खुद को खून नहीं मिलता है तो हार्ट अटैक। तो इस खेत को जो ऊपर वाले ने दिया है, उसको पानी सिंचाई के लिए मिलने के लिए जो मोटर चलती है वो दिल है। इस दिल की एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, एक मैकेनिकल सिस्टम है। एक तो एनी वायरिंग છે અને એક બોરિંગ છે કે મોટર ગણો। तो जो ताकत मारता है
दिल की जो स्नायु है, जैसे आप मुट्ठी करते हो, इस तरह से हमारा दिल, उसकी साइज भी एक मुट्ठी जितनी है। तो जो छोटा बच्चा है उसकी मुट्ठी की साइज होगी, उसके दिल की साइज होगी, और जो एक बड़ा आदमी है उसकी बड़ी अपनी मुट्ठी है उसके साइज की, तो इतने साइज का आपका दिल होता है। तो ये पहले खून लेता है और फिर संकोचन के द्वारा उसको आगे फेंकता है। अब ये सब जानने की जरूरत क्यों? क्योंकि 100 में से 5% लोग किसी अस्पताल की इमरजेंसी में सीने के दर्द के साथ ही जाते हैं। ये शायद कम होगा, शायद इससे ज्यादा लोग जाते होंगे कि मुझे सीने में दर्द हुआ, लाओ मैं अस्पताल जाके आता हूं। ये इमरजेंसी की बात हो रही है, डॉक्टर के पास जाने की बात ही नहीं हो रही कि रात को 3 बजे दौड़े, उसमें से 20 मरीज में से एक मरीज सीने में दर्द का होता है, और 100 में से 15 मरीजों को हार्ट अटैक होता है। मतलब 10% ऐसे लोग होते हैं जिन्हें पता भी नहीं होता है वो मरे तो गैस है, ऊपर चढ़े से नीचे चढ़े से माथा में चढ़े से जाने गैस ने खबर पड़े कि मारे क्या चढ़વું છે, એવું નથી होता। ये आपको आभास उल्टा देता है, क्योंकि ऊपर वाले ने हमारी ट्रेन को भी इतने कंपार्टमेंट में बनाया है कि आप एसी का पैसेंजर है वो जनरल में डब्बे में नहीं जाता, आंतड़ियां पेट के नीचे ही रहती हैं, वो चढ़ के ऊपर आपके दिल के अंदर नहीं घुस जाती, तो गैस चढ़ नहीं सकता आपके दिल में। आपको गैस का एहसास होता है क्योंकि अन्न नली में गैस ऊपर आता है, तो आपको एहसास होता है कि मेरा गैस ऊपर चढ़ गया। बाकी आंतड़ियां पेट में ही रहती हैं और दिल ऊपर ही रहता है, दिल नीचे नहीं उतर जाता कि पैर में उतर गया, ऐसा नहीं होता। तो उस आभास ना ले पाने के कारण कई डॉक्टर भी अपनी जान गंवा चुके हैं। मैं नाम नहीं दूंगा, लेकिन आपने पढ़ा होगा, कई जगह देखा होगा, गैस समझा, अपने आप की कुछ का टेस्ट कराए और सो गए, और फिर सुबह नहीं उठे। वो क्या थे? वो सब हार्ट अटैक थे। क्योंकि गैस से किसी की जान चली जाए ऐसा नहीं होता है, कोई बलून होके फट नहीं जाता है, ऐसा नहीं होना गैस बहुत बढ़ गया फिर फट गया, ऐसा तो होता नहीं। तो गैस का आभास देने वाली प्रक्रिया एक हार्ट अटैक हो सकती है। तो इस परिभाषा में मैं मरीजों को इस तरह से समझाता हूं कि आपके शरीर को खून देने की प्रक्रिया जो है वो एक दिल करता है। पूरे खेत जो शरीर का खेतनुमा शरीर है आपका, उसको खून पहुंचाने का काम ये मोटर करती है। जब ये मोटर के बेरिंग खराब हो जाते हैं तो इसकी ताकत कमजोर हो जाती है, यानी इसको बोलते हैं हार्ट फेलियर। हार्ट कमजोर हो जाता है। ये क्यों खराब हो सकती है? क्योंकि ये जो दिल जो सारे शरीर को खून देता है, इसको खुद को भी तो खून चाहिए, और उसको जो नलियां खून देती हैं उसे कोरोनरी आर्टरीज या दिल की नलियां कहते हैं, जो कि हम एंजियोग्राफी में देखते हैं। जो ब्लॉक अगर होती है तो दिल को खुद को खून नहीं मिलता है, इसलिए वो बराबर काम नहीं कर सकता। अब ये सब तो ठीक है, चलो उसको खून मिला, लेकिन दिल को कैसे पता उसे 72 बार चलना है 1 मिनट में, कि 60 से 100 बार चलना है, कि आप दौड़ रहे हैं तो 200 पे भी चलना है, और आप सो गए तो 50 पे चलना है। उसकी जो करामात है, उसके अलावा विज्ञान उसको इस तरह से समझता है कि दिल के अंदर भी ऊपर वाले ने एक बैटरी फिट कर रखी है, जिसको कि हार्ट का पेसमेकर कहते हैं, जैसे कि ऐसे नोड कहते हैं, जहां से कि एक करंट हर 1 सेकंड में लगभग निकलता है और पूरे दिल में प्रसर जाता है। तो ये हार्ट की वायरिंग का सिस्टम। और जब ये बैटरी, जैसे आपकी घड़ी का सेल खाली हो जाता है तो पहले क्या होती है? घड़ी बंद हो जाती है एकदम से? नहीं, पहले स्लो हो जाती है, कभी चलती है कभी नहीं चलती है, कभी आधा घंटा पीछे चलती है, कभी टाइम पे आ जाती है। वैसे तो कहा तो ये भी जाता है, हर खराब घड़ी भी बंद होने पे 12 घंटे में एक बार सही समय दिखाती है, पर इंसान में ऐसा नहीं होता है। मरीज जब आता है आपके पास, ऐसा है मां को कार्डियोग्राम तो सरस आपे છે, અત્યારે તો કઈ નથી, અત્યારે નથી, पर जीने के लिए दिल को देखिए। ये एक उदाहरण है कि कैसे आपको सारी जिंदगी लगे रहना होता है। आपका दिल कभी आपको ये बोलता है मैं 5 मिनट आराम कर लेता हूं, फिर मिलते हैं, गए। 5 मिनट नहीं होता है, उसे हर सेकंड एक बार धड़कना है। तो जीने के लिए 24 घंटे में आप बोलो सर मेरा तो 23 घंटा 58 मिनट दिल बढ़िया चलता है, 2 मिनट के लिए बैटरी लगा, वो 2 ही मिनट काफी है सीधी लाइन हो जाने के लिए। तो उस परिप्रेक्ष्य में जब बैटरी में करंट नहीं रहता है तो आपकी धड़कन स्लो हो जाती है। ताकत तो अभी मोटर की बढ़िया है,
लेकिन जो हर सेकंड पे वो 10 फुट दूर मोटर पानी फेंक रही थी, अब हर सेकंड ना फेंक के 4 सेकंड में एक बार फेंकती है, 10 सेकंड में एक बार फेंकती है, तो धड़कन स्लो हो जाती है ताकत से ही। उसमें ना नलियों में ब्लॉक है, उसमें वायरिंग में प्रॉब्लम है। उस केस में करंट लेने के लिए आप पेसमेकर लगाते हो। तो देसी भाषा में हम हमारे मरीजों को इस तरह से समझाते हैं कि या तो आपकी मोटर खराब है, या आपकी बेयरिंग खराब है, या आपका इलेक्ट्रिकल सिस्टम खराब है, या बीच में वाल्व खराब है, और उससे आप अपने दिल की जो इलाज, तो ये है दिल के अंदर 4 खाने होते हैं। नेक्स्ट, और काम क्या करता है वो, ये जो मैंने कहा मोटर है, और पंप करना है उसे खून इस तरह से। नेक्स्ट, और ये खून कौन देता है, कहां से आता है, दिल के खानों में एक पेसमेकर होता है जो करंट लेके जाता है। और ये भी देखिए कुदरत का करिश्मा, ऊपर वाले का करिश्मा, कि उसमें चारों खानों में कोऑर्डिनेशन होना भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि जब बीवी घर में एंटर हो रही है, पति बाहर जा रहा है, तो फिर तो मिलेंगे ही नहीं दोनों, तो फिर कैसे चलेगा। तो ऊपर वाला खाना जब नीचे खून दे रहा है, तो नीचे वाला खाना खून रिसीव कर रहा है। वो बोलेगा तू भी फेंक, मैं भी फेंकू, दोनों आपस में झगड़ा करें, ऐसा भी होता है, तब आपको पेसमेकर लगाना पड़ता है, क्योंकि दोनों के बीच का कोऑर्डिनेशन चला गया, जो धड़कन की अनियमितता बोलते हैं। तो ये कोऑर्डिनेशन भी दिल के अंदर इन पेसमेकर सिस्टम्स जो कुदरती बनी हुई है उससे होता है। नेक्स्ट, और इस धड़कन की प्रक्रिया को हम हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन इन सिस्टली और रिलैक्स होना इन डायस्टली कहते हैं। मतलब पहले उसको खून लेना भी पड़ेगा, उसके अंदर भर गया, और उसके बाद वो पंप करके आगे भेज देगा। तो ये संकोचन और रिलैक्सेशन, ये प्रक्रिया सिस्टली और डायस्टली है, और इससे ही खून शरीर में फैलता है। तो ये अपने पूरी खेत के अंदर पाइपिंग सिस्टम बिठा रखी है। मोटर से खून गया सारी पाइपों तक, यहां तक आप उनको चीटी काट गई, वहां पे भी खून आ गया। ये पूरी सिस्टम दिल की कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है। तो इसमें भी कोई पाइप बंद हो जाए तो आपको वो भी खोलनी पड़ती है। अगर हाथ की पाइप बंद हो गई तो वहां खोलोगे, गले की बंद हो गई वहां खोलोगे, नीचे बंद होगी वहां खोलोगे। और इन पाइपों को बंद कौन कर देता है? तो इन पाइपों में जमता हुआ कचरा। कचरा क्या है? वही जो सैटरडे संडे अपन सब खा लेंगे, और नहीं खाते तो जबरदस्ती मंगा लेते हैं। तो बहुत आसान हो गया, मोबाइल पे छोटा बच्चा भी जानता है, जोमैटो ये वो ले आओ, क्लिक पापा पासवर्ड, फिर पासवर्ड डाल दो आप पिन, बाकी आ जाएगा। तो वो प्रक्रिया कोलेस्ट्रॉल जमाती है, तो पाइप में कचरा जमने से नलियां सिकुड़ जाती है, वो है कोलेस्ट्रॉल। अब कोलेस्ट्रॉल क्या है? मतलब कोलेस्ट्रॉल होना ही चाहिए जीरो? नहीं, ऊपर वाले ने दिया है तो किसी काम से दिया हुआ। कोलेस्ट्रॉल कहां चाहिए? दिमाग में चाहिए। दिमाग की जो ग्रंथि है वो कोलेस्ट्रॉल से चलती है। तो क्या कोलेस्ट्रॉल हर प्रकार का अच्छा ही होता है? नहीं, हर चीज की अति खराब होती है। दीदी आपको बताती होंगी, किसी चीज की भी, आप गुस्सा भी करो आधा सेकंड करो, आधा मिनट करो, प्यार करो, किसी को समझाओ, पुचकारो, बच्चे को फुसलाओ, जो भी, थोड़ी देर, अति नहीं। किसी चीज की भी अति हो गई, गड़बड़ हो जाएगी। वही कोलेस्ट्रॉल का चक्कर है। अब हुआ क्या, इसकी कोलेस्ट्रॉल की भी बहुत एक मैं कहानी हमारे डॉक्टर मित्रों को खास समझाता हूं, और वही आपको समझाऊंगा। मानव की उत्पत्ति किससे हुई? ऐसा बोलते हैं कि हम ईश्वर से तो हुई, उनसे भी हुई, वो पर वानर से हुई, ऐसा कहते हैं। अगर हनुमान जी हमारे पूर्वज थे और हम उनसे आए थे, तो हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल भी उनके जैसा होना चाहिए। बंदरों का, ओरांगुटान का, चिंपांजी का, इन सभी प्राइमेट्स का, जिसको विज्ञान में कहा गया है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल होता है 30। अच्छा, आदिवासी या ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिन्स जिन्हें कहा जाता है, उन लोगों का कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है 50। अब हम इंसानों ने क्या किया, इसका मैं उदाहरण ऐसे देता हूं कि एक चोरों का गांव था। उन्होंने कहा यार ये सब अपने को चोर चोर बोलते हैं, ये तो बड़ी गलत बात है, अपन तो यार बहुत अच्छे लोग हैं, अगर सब अपने को चोर बोले नहीं, ये एक बात तो है, अपन चोरी तो करते हैं। तो एक काम करते हैं कि अपन पहले गिन लेते हैं कि एवरेज चोरी कौन कितना करता है। तो बोले आपने 10 की, उसने 20 की, इसने 30 की, मैंने 2 की। एवरेज 100 घर के बीच में गिनो तो 8 हुई। तो जिसने 8 से ज्यादा चोरी की वो चोर, 8 से कम की वो चोर नहीं। कोलेस्ट्रॉल की भी यही कहानी। हमने क्या किया, सारे
ह्यूमन बींग्स का कोलेस्ट्रॉल में पहले मापना शुरू किया। ये नहीं देखा कि हमने क्या खाना शुरू कर दिया। हमने जानवरों का दूध पीना शुरू कर दिया। इंसान का तो ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा नहीं पीना चाहिए, गाय का दूध अच्छा, वो वाली बात में नहीं जा रहा। हमने और भी कई तरह के उटपटांग खुराक चालू कर दिए। वनस्पति ऊपर वाले ने दी थी, उसको छोड़ के आहार आपका शुद्ध ना रहा, नॉनवेज चले गए। और हम कह रहे हम तो कुछ भी पचा लेते हैं, हम पत्थर भी खाएंगे पच जाता है। तो ये जो प्रक्रिया दिमाग में बैठ गई, उसके बाद हमने सबका बोला, आप सब बैठ के अपना कोलेस्ट्रॉल देखते हैं कितना आता है। बोले एवरेज कितना है? एवरेज 130 है। तो 130 सही है, 130 के ऊपर वाले सब खराब। भूल क्या है कि हम तो बंदरों में से आए थे जिसका कोलेस्ट्रॉल 30-50 होता है। वो आदिवासी जो मछली खाते थे, शिकार करते थे, फल फ्रूट खाते थे, जंगलों में रहते थे, उनका 30-70 है। हम सो कॉल्ड मॉडर्नाइज्ड, एडवांस्ड, रिफाइंड, साफ किया हुआ, घानी का पिघलाया हुआ, कसा हुआ, मशीनों में डाला हुआ खाने लगे और सो कॉल्ड उसको फिल्टर्ड समझने लगे। उससे जो कोलेस्ट्रॉल आया, उसके बाद अपने खून की वैल्यू माप के बोले 130 थी। क्या हुआ? पहले यही विज्ञान 30 साल पहले कहते थे 190 एलडीएल ठीक है, फिर वही कहने लगा 160 ठीक है, फिर कहने लगा 130 ठीक है, फिर कहने लगा 100 ठीक है। फिर इन्होंने सारे अभ्यास किए और देखा कि 0 हार्ट अटैक किस कोलेस्ट्रॉल पे आते हैं, वो कितना था? जितना बंदरों का है, 30। इसलिए जो एवरेज हो गया वो गलत। तो कोलेस्ट्रॉल कम होना चाहिए, लेकिन 0 नहीं हो जाना चाहिए। कुछ चाहिए दिमाग के लिए चाहिए, लीवर के लिए चाहिए। पर दिक्कत है कि कहां से आप ले रहे हो, क्या खा रहे हो। तो हर चीज का कोलेस्ट्रॉल में भी प्रकार होता है। कैसा प्रकार होता है? एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड वगैरह वगैरह। तो खराब को माना गया है, एलडीएल अच्छा माना गया है। एचडीएल कैसे बढ़ता है? चलने से बढ़ता है, वजन उतारने से बढ़ता है, कसरत से बढ़ता है, कुछ कहते हैं दारू से बढ़ता है, पर वो एक अलग विषय है, वो उसमें नहीं पढ़ेंगे। पर वो गलत है। हिंदुस्तानियों में एक बहुत बड़ा अभ्यास हुआ इंटर हार्ट, जिसमें ये कहा गया थोड़ा अल्कोहल हार्ट के लिए अच्छा है, वाला गलत है। तो ये अपने लिए तो बनी नहीं है, सोमरस सिर्फ प्रभु के लिए है, अपने लिए नहीं। आप आगे तो कोलेस्ट्रॉल एलडीएल और एचडीएल 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट, और खराब कोलेस्ट्रॉल जो है उसका काम क्या है? खराब कोलेस्ट्रॉल इस तरह से नलियों में जम जाता है। अच्छा कोलेस्ट्रॉल उल्टा काम करता है, आता है इस कोलेस्ट्रॉल को पकड़ता है, लेकिन लीवर में चला जाता है, सफाई कर देता है। आप अच्छे को बढ़ाइए, खराब को घटाइए। आप पूरे विश्व की जनसंख्या मत देखिए, आप भारत की जनसंख्या देखिए कि आपकी अच्छी जनसंख्या क्या है, तो वो उसका परिप्रेक्ष्य। आगे, अब ये नॉर्मल नलियां इस तरह से होती है। नेक्स्ट, और जब इसमें चर्बी जमती है तो शुरू में इस तरह से दीवार में जमनी शुरू होती है। फिर ये चर्बी एकदम से अगर इसके ऊपर इस तरह से यहां पे चमड़ी, नेक्स्ट, और आप सुन रहे हैं आ छोकरा जिम्मा जाए छे, पति जाए छे, શું ચાલ્યું છે? ગરબા ગાતા હતા, જતા રહ્યા, ક્રિકેટ રમતો તો ત્યાં જ गेम ओवर થઈ गई। चर्बी ना सर पाना है। जो चर्बी की दीवार है, यहाँ पे थोड़ा सा अगर चीरा हो जाए, आपके जैसे आप मान लो ब्लेड से काट दो, क्या आप सारी जिंदगी खून बहाते रहते हैं? नहीं, बंद हो जाता है। क्यों हो जाता है? हमारे प्लेटलेट जो हैं वो वहां पर आके क्लॉट बना देते हैं। वही प्रक्रिया जब नलियां चिरती हैं तब होती है। लेकिन जब नलियां चिरती हैं और वहां पे अगर पुलिस वाला रास्ता सकड़ा है और दंगा हो जाए, तो पुलिस की एक ही गाड़ी काफी है ट्रैफिक जाम करने की। वही सिकुड़ी नली में होता है। जब नली सिकुड़ गई और थोड़ा सा चिर गया, चिर कैसे गया? उसको मसल बनानी थी। अब सबको आज की जनरेशन में तुरंत चाहिए। आप बोले 22 गोल्ड मेडल, तो कमल शर्मा साहब को क्या एग्जाम में 22 मेडल? नहीं, 22 एग्जाम में 22 मेडल मिले। आप बोलो मेरे को एक एग्जाम देके 23 लेने मिल जाएंगे? तो नली भी ऐसे चलती है। नेक्स्ट, तो जब आपने फसल बनानी है, आप बोलो तो करेंगे 10 किलो नहीं, 50 नागो साहब खेची लो, पेट दाड़ा मसल 50 कुछ क्यों શું થાય? જોર લાગે, લોડ ક્યાં પડ્યું? 8 વજન પડ્યું અને નળી આછી ગઈ, छोटा सा चीरा। और फिर सारे प्लेट्स वहां गए, पुलिस आ गई ब्लीडिंग को रोकने के लिए। आई रोकने के लिए कि भाई तू अंदर मत आना, लेकिन उसने खुद ने वो रास्ता रोक दिया। ये है हार्ट अटैक। ये है। नेक्स्ट,
और इसलिए ये पूरी नली बंद हो गई। अब ये बंद हो गई तो एग्जाम आगे खून नहीं जा रहा, खून नहीं जा रहा, तो किसको खून नहीं मिल रहा? दिल को नहीं मिल रहा। कौन दिल? वो मशीन जो बाकी शरीर को खून देती। तो अगर शरीर को खून नहीं मिल रहा तो क्या होगा? बीपी कम हो जाएगा। बीपी कम हो जाएगा तो फिर दिमाग को नहीं मिल रहा तो होश भी कम होगा, किडनी को नहीं मिल रहा, किडनी काम नहीं करेगी, हथेलियों को नहीं मिल रहा, गैस भी लगेगी, हाथ पैर नहीं जा रहा, ठंडे भी पड़ेंगे, पसीने भी आएंगे, और इस तरह से हार्ट अटैक के मैनिफेस्टेशन होते हैं। नेक्स्ट, तो ये है हार्ट अटैक। ये दिल है आपका, इसके ऊपर नलियां जा रही है, जिसके अंदर यहां एक ब्लॉक आ गया, इसमें से खून दिल को मिलता है और यही यहां पे बंद हो गई। नेक्स्ट, तो क्या होगा? सांस फूलेगी, सीने में दर्द होगा, नीले पड़ जाएंगे क्योंकि ऑक्सीजन नहीं जा रहा, शरीर को नहीं मिल रहा, बेहोश भी हो सकते हैं दिमाग को अगर खून ना मिले तो, और हार्ट अगर कमजोर हो जाएगा, धड़कन अनियमित हो जाएगी क्योंकि जो धड़कन देने वाला केंद्र है उसको भी खून चाहिए, दिल को उसको भी खून चाहिए, और कई बार खून की उल्टी होगी। नेक्स्ट, और उसकी वो मैंने मेडिकल टर्म में, तो आपको क्या करना है? ये सब तो चलो ठीक है, डॉक्टर साहब आपने हमको एमबीबीएस करा दिया आधा घंटे में, हम कार्डियोलॉजिस्ट बन गए आधे, पर हमें क्या करना है? ट्रीटमेंट भी तो सिखाइए। तो ट्रीटमेंट तो यही है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप कुछ हो जाए उससे पहले कुछ ना हो उसके बाद सजग। वो कैसे हो सकते हैं? नेक्स्ट स्लाइड। आप अपना बीपी कंट्रोल रखें, पेन गो बैक। तो एक बहुत बड़ा संशोधन हुआ जिसका नाम है इंटर हार्ट स्टडी, कुल 52 देशों में हुआ, 10 लाख से ज्यादा मरीजों पर हुआ, और ये जानने के लिए हुआ कि किन कारणों से हार्ट अटैक आता है। उनसे सब पूछा गया उन मरीजों से कि भाई आप क्या खाते हो, क्या पीते हो, क्या नहीं पीते हो, दारू पीते हो, दारू नहीं पीते हो, कौन सी वाली पीते हो, कहां से लाते हो, किससे लाते हो, खुराक में क्या लेते हो, आपका कोलेस्ट्रॉल कितना है, आपका बीपी कितना है, आप एक्सरसाइज करते हो नहीं करते हो, कितना घंटा सोते हो, आपका स्ट्रेस कैसे, आपका बॉस कैसा, आपकी बीवी कैसी, वगैरह वगैरह, आपको स्ट्रेस है कि नहीं। तो इन सभी अभ्यासों में ये 10 परिबल पाए गए जो हार्ट अटैक के 90% कारणों को एक्सप्लेन करते हैं। मतलब अगर 100 मरीज आपने लिए तो 90 मरीजों को हार्ट अटैक इन 10 कारणों में से किसी एक या उनसे ज्यादा कारणों से आता है। मतलब जिसको 10 में से 10 है उसको आने का बहुत ज्यादा चांस है, जिसमें 10 में से 1 है तो भी उसको आ सकता है। तो ये 10 कारण क्या है? चलो अभी ये बहुत ही एलीट ऑडियंस बैठी और डायलॉग करना है, तो एक एक कारण आपसे ही जान लेते कौन कौन से कारण हो सकते हैं। तो बताएं कौन कौन से कारण हो सकते हैं भैया हार्ट अटैक, सबको पता है, बताएं। एक तो स्ट्रेस, चलिए, तो ये साइकोलॉजिकल स्ट्रेस को पाया गया कि वो एक इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। इससे आगे भी एक बात करूं कि ऐसा भी कुछ पेपरों में पाया गया, इंटरहार्ट में नहीं, कि कितने घंटे आप काम करते हो भी एक इंपॉर्टेंट है। आप कुछ कहेंगे, नारायण मूर्ति जी तो कह रहे थे 70 घंटे काम करो, आप यहाँ तो आरोप रहे हो, पर फर्क ये है कि आपका काम क्या स्ट्रेस है या आपका काम ही आपकी खुशी। अगर आप काम वो करते हो जिसमें आप खुश हो तो आप स्ट्रेसफुल नहीं है। लेकिन अगर आप 45 घंटे एक हफ्ते से ज्यादा काम कर रहे हो, एक हफ्ते में यानी कितना 6 घंटा हो गया, 6 घंटे से ज्यादा अगर आप काम कर रहे हो एक दिन में, मेजॉरिटी ऑफ द डेज, तो आपका रिस्क बढ़ता है हर घंटे पे 2%। लेकिन अगर आप खुश हो जो आप कर रहे हो तो आप खूब जीते हो, तो कुछ दिक्कत नहीं। तो स्ट्रेस एक। दूसरा कोई बताएगा और कोई कारण? वेरी गुड, तंबाकू। तंबाकू का सेवन, अब किसी प्रकार का भी व्यसन हर जगह, हर धर्म में, हर डॉक्टर द्वारा प्रतिबंधित, मना किया गया है, नहीं करना है। सब जगह बोलते हैं तुम धर्म के नाम पे छोड़ दो, तुम सेहत के नाम पे छोड़ दो, तुम मेरे नाम पे छोड़ दो, तुम बच्चों के नाम पे छोड़ दो, तुम ऊपर वाले का, पर नहीं छोड़ता है। क्यों? लत। पर जैसे कि बता रहे थे भाई कि लत क्या है? सिर्फ ये नहीं है हाथ में जो सबके सुबह उठने से पहले सबके हाथ में आता है और छोड़ने में सबसे आखिर में छूटता है, नहीं वो आपके स्पाउस या बच्चे नहीं है, वो आपका मोबाइल है, वो भी एक। क्यों? क्योंकि बीवी को आप बोलो मेरे को ये वाला खाना है, जरूरी नहीं है वो मिले। मोबाइल को तो आप बोलो मेरे को तो ये देखना है, वो तुरंत देता है, इसलिए आपको पसंद है। आपको जो चाहिए वो देता है। आप बोलते हो मेरे को गाना सुनना है, आप लोग
आप बोलते हो मेरे को कॉमेडी देख ली लो, आप मान के देखो अपने बच्चों से कि मेरे को भी गाना सुना, पापा टाइम नहीं। तो ये इच्छा पूर्ति इस मोबाइल के एडिक्शन की वजह, तंबाकू के खुद उसके व्यसन नहीं है, पर तंबाकू एक बहुत बड़ा। अब अच्छा कोई मुंह तो शायद खातो ना थी, खाली मुंकी राखू मुंकी राखू छुए कोई એવું તો છે નહીં કે ભગવાનને ચડાવ્યું પણ ચડ્યું નહીં, હા કે સાહેબ સાદી સોપારી તંબાકુ વાળી પણ કથા વગરની, એના પાછું મતલબ છે મને ખબર ના પડી, પછી કોઈ કે નહીં વિમલ ખાતા, હવે આ નામ થઈ ગયું, હા पर आप બધું છે तंबाकू। એટલે हम ऐसा कहते हैं कि ये सब चाचा मामा के भाई, चचेरे ममेरे भाई, किसी ने पिया, किसी ने चबाया, किसी ने फूका, किसी ने थूका, किसी ने सट्टा मारा, किसी ने हुक्का लिया, किसी ने चिलम लगाया। पहले हुक्का बार चले थे यहाँ से, है ना, फिर बयान हो गए पूरे। क्यों? तंबाकू, वो अलग तरीका है तंबाकू पीने का। और फिर अब विदेशों में आ गई स्मोकलेस सिगरेट्स, ई सिगरेट्स, वो भी तंबाकू, वो भी खराब है। तो किसी भी प्रकार का तंबाकू एक बड़ा रिस्क फैक्टर पाया गया है, और उसको बंद करने का फायदा कब मिलता है? बिना तंबाकू पिए बियर व्यक्ति के बराबर, मतलब एक व्यक्ति जिसने कभी नहीं पी, और एक व्यक्ति है जो रेगुलर तंबाकू लेता था और आज कहता है मैं छोड़ दूंगा, अब मैं तेरे जैसा बन जाऊंगा। तो वो कब बनेगा? छोड़ने के 10 साल। आप आज शुरू करो, 10 साल बाद उसकी असर आएगी। आपको छोड़ने के कुछ लाभ तुरंत मिलेंगे, लेकिन नॉन स्मोकर, नॉन टंबाकू कंज्यूमर आप बेनिफिट 10 साल में पाओगे। तो 10 साल अभी शुरू करें तो तब पहुंचेंगे। तो इस तरह से समझाते हैं। कई मरीजों को ये होता है सर नहीं छूटेगी, चाहे 6 वर्ष में होता ना त्यारथी मारा दादा खाता था, હું 72 નો થયો, હવે નહીં છૂટે। તો એ જ ભાઈ જોડે એમનો 6 વર્ષનો પોતરો આવે, મેં તો આને બી ચાલુ કરાય, તમારી ઉંમરનો હતો, એના અહમને વાગ્યું, એ દિવસેથી છોડી દીધું, ના આને નહીં પીવું, इसको नहीं पीना। तो कई बार आपको छुड़ाने के लिए इस तरह के उनकी अहंकार पे तंबाकू के चोट, तो उसको छोड़ने के तरीकों बोलते क्विटर की, आज से छोड़ी। कई ऐसा बोलते साहब धीरे धीरे कम करके छोड़ दो। कैसे छूटती है? कभी कभी नहीं छूटती। हाँ, मैं उनको बोलता हूँ ठीक है, दिन की 30 पीते हो ना, 30 दिन बाद मिलेंगे, रोज एक एक कम करना, छूट जाएगी। नहीं नहीं, फिर भी 2-3 तो रहेगी, तो छूटती नहीं। तो वो काम करने में कोई फायदा नहीं है, बंद करने में फायदा। तीसरा रिस्क फैक्टर और क्या हो सकता है? फूड हैबिट। तो क्या आप खाते हो, क्या आप खाते हो से ज्यादा क्या आप नहीं खाते। क्या पाया गया? जो 2 सर्विंग ऑफ सैलेड्स और फ्रूट्स खाते हैं उनको हार्ट अटैक करना। आप क्या खाते हो? अब वो अंग्रेजों ने शायद नॉनवेज को बचाने के लिए किया होगा, जो भी है, पर क्या नहीं खाते हो जरूर पाएगा। यदि आप 2 सर्विंग ऑफ फ्रूट्स या सैलेड्स खाते हो तो आपको हार्ट अटैक आने का चांस कम होता है। 3 और बताइए। इरेगुलर खाना। अब ये एक बहुत अच्छा पॉइंट इन्होंने उठाया, लेकिन ये उस स्टडी में नहीं था। ये मेरा खुद का जो 208 पेपर बता है उसमें से एक पेपर है, और आप गूगल करेंगे तो टाइम्स ऑफ इंडिया में मेरे नाम से आर्टिकल या बहुत सारी जर्नलों में छपाता मिल जाएगा। हमने ये पाया जो ब्रेकफास्ट छोड़ के जाते हैं उनको हार्ट अटैक आता है। आज टाइम नहीं भागो, लंच जोड़े ले, स्किपिंग ऑफ ब्रेकफास्ट इज अ रिस्क फैक्टर। ये हमने पाया था, ये हमारा खुद का संशोधन और रिसर्च है, जो कि एक बहुत ही इंटरनेशनल ऑक्सफोर्ड प्रेस में पब्लिश हुआ था लंदन में, और उसको फिर काफी मीडिया ने हाईलाइट भी किया था। पर ये उनमें से नहीं है। पर हाँ, ये जरूर है कि खुराक की पूरी बात एक में आ गई कि खुराक का सेवन किस तरह से आप करते हो, रेगुलर खाओ, और सबसे जरूरी रात को कम खाओ। उस मामले में कई धर्मों में पहले से ये बताया गया है। जैन धर्म, दूसरे धर्म की अच्छी बात भी स्वीकार नहीं चाहिए, नहीं रात हो गई, नहीं खाते रात को, तो रात का खुराक कम हो, दिन का खुराक अच्छा हो। वही हम लोग भी पालन करते हैं। फास्टिंग, आप इंटरमिटेंट फास्ट करो, उपवास करो, आपकी बॉडी को रीसेट करता है। और ऐसा विज्ञान भी मानता है कि उम्र बढ़ाने का एकमात्र तरीका शुगर घटाना। शुगर घटाना मतलब ब्लड शुगर नहीं, खुराक में शुगर घटाना। जो कैलोरी रिस्ट्रिक्ट करता है वो लंबा जीता है।
और ये साइंटिफिकली प्रूवन है। जिन लोगों के पास नेटफ्लिक्स वगैरह हो, ब्लू हॉराइजन्स नाम की एक सीरीज है, आप चाहें तो उस पर देख सकते हैं कि जापान में एक आइलैंड है जहां पर 108 लोग ऐसे रहते हैं मात्र 20,000 की पॉपुलेशन में जिनकी उम्र 100 से ज्यादा है। जहां की अमेरिका, जहां पे विज्ञान सबसे ज्यादा बढ़ा हुआ है, जो कहते हैं कुछ भी बीमारी होगी इलाज कर देंगे, वहां पूरे अमेरिका में केवल 20 लोग ऐसे हैं जहां पे उम्र 100 से ज्यादा है। तो कुछ तो गड़बड़ है। तो उस द्वीप पे जहां 108 लोग 100 पार कर पाए, उन्होंने ढूंढा क्या 10 चीजें थी, तो काफी कुछ यही थी जो मैं अभी आपसे चर्चा कर रहा हूं। और क्या हो सकता है? वेरी गुड। तो ये तो आप बोल ही नहीं रहे। अच्छा, बीपी, आपने सुना कभी बंदर को बीपी हो गया, नस फट गई, बंदर छलांग मार रहा था, उसका नस फट गई? या कभी आपने सुना मेरी गाय को डायबिटीज हो गई इसलिए वो दूध आजकल मीठा दे रही? ये सब हमने हमारे पूर्वजों से, उनकी लाइफस्टाइल से डेविएट होके पाई हुई बीमारियां, जो मैंने आपको चोरों के गांव की कहानी सुनाई, शुगर और बीपी भी वहीं से आया थे। बंदरों की तरह जीने के लिए, रोज दौड़ने के लिए, पेड़ों पे पेड़ से पेड़ छलांग चाहे नहीं लगाए, पर एक जगह से दूसरी जगह चलने के लिए चलना हो गया बंद। तो चलना जो बंद हो गया, वो एक कारण है कि लाइफस्टाइल में कम से कम आपको 150 मिनट पर हफ्ता, मेजॉरिटी ऑफ द डेज, मींस आप बोले मेरे पास रोज टाइम नहीं है, मैं तो सोमवार को बहुत काम होता है मेरे वजह से, मैं नहीं कर सकता, तो आप 2 दिन छोड़ सकते हो, 3 दिन छोड़ सकते हो, पर 4 दिन तो चलना है, और चारों का मिला के 150 मिनट होना है। इतना कर लो। आप एक दिन में 150 चलते हो, वो अलग विषय है, पर उसमें भी अलग है कि आप अति, मैंने जो बोला, किसी की भी अति खराब है। आप रोज मैराथन रनर्स, ऐसा पाया गया है, जो खूब दौड़ते हैं, उनके नलियों में चूने जमने की प्रक्रिया ज्यादा तेज होती है। हालांकि क्योंकि वो दौड़ते हैं इसलिए अटैक भी उनको कम आते हैं, लेकिन नलियां बूढ़ी भी जल्दी होने लगती हैं, पर अटैक नहीं लाती। तो आप दौड़ो, पर मैराथन दौड़ना जरूरी नहीं है, आप 150 मिनट हफ्ते में चलो। तो एक्सरसाइज एक प्रोटेक्टिव रिस्क फैक्टर, वॉकिंग एक्सरसाइज, एरोबिक्स, जो भी आप करें, गाना, सिंगिंग, स्विमिंग, डांसिंग, जो भी आपको ठीक लगता है। और डायबिटीज और ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर, हमें इनको लाइफस्टाइल डिजीज कहा गया है। ये हमारे जीवन के जिस शैली जीने के तरीके हैं उससे पाई गई बीमारियां, हमारे स्ट्रेस से, हमारे खुराक से, हमारे नमक से, हमने नमक जो बढ़ा दिया खुराक में। अब यही लोग अमेरिका जाएंगे तो हाँ अच्छा खाना था, वहां नमक मिलता ही नहीं, खाते ब्लैंड डाइट जिसे बोलते हैं, और यहाँ पे आएंगे तो थोड़ा स्पाइसी बना जो नाक बराबर, गरम मसाला, लाल मसाला, पीला मसाला, काला मसाला, અને દરેક મસાલામાં એડિશનલ મીઠું, પછી પાપડ લાવો, અથાણું લાવો, ચટણી લાવો, સોસ લાવો, આ બધામાં શું છે? નમક। ये सब नमक है। नमक किस पे लोड देगा? आप पानी में नमक घोल दो, पानी कैसा होगा, हल्का या भारी? वही आपका खून। और काम किसको करना पड़ेगा? किडनी को। मेरा सॉल्ट है, इसको निकालो, फिर बोले रात 3 बार शायद उठो पड़े से पेशाब માટે। किडनी जो नमक ज्यादा है उसको निकालने काम करना पड़ेगा। आप सो रहे हो, वो काम कर रही, तो नमक कम करें तो बीपी जाएगा, स्ट्रेस कम करें तो बीपी जाएगा, वजन कम करें तो बीपी जाएगा, पोटेशियम बढ़ाएं, कैल्शियम बढ़ाएं। ऐसा पाया गया है कि 20 मिलीमीटर ऑफ मर्करी आप लाइफस्टाइल चेंज से काबू कर सकते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि सभी का बीपी चला जाएगा, कुछ को जेनेटिक बीपी भी होगा जो वापस हमारी उत्पत्ति के थ्रू आया है, जिसमें दवाई लेनी पड़ेगी, पर मूल में ये है कि बीपी को कंट्रोल रखना पड़ेगा। बीपी काबू में મને તો સાહેબ 160 180 રહે છે, મને કઈ થતું નથી। આ ઉભો તમારા સામે જો है से घर में आसपास 2-4 मिल जाएंगे, मेरे को कुछ नहीं होता, मैं तो 180, पची एक बार, सिर्फ एक दिन के लिए एक बार लगा होगा, फिर क्या होगा? लाइफ टाइम में। मैं उनको यही बोलता हूं कि साहब मैं तो ताला लगाए बगैर ही सोता हूं, मेरे यहाँ कोई चोर नहीं है। रोज आता है, मैं तो हाथ छोड़ के गाड़ी चलाता हूं, मैं तो एकदम फर्स्ट क्लास, मेरे वीडियो वायरल है, देखो आप, कुछ नहीं होता। फिर क्या होगा? सबसे ज्यादा वीडियो वायरल वो होगा जब गाड़ी उल्टी। तो एक्सीडेंट एक बार होता है,
गोल आपका हमेशा बीपी कंट्रोल होता है। वही डायबिटीज की बात है, ये दो सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क। अगर आपको बीपी है तो आपको हार्ट अटैक आने का चांस दुगना है, और अगर आपको डायबिटीज है तो आपको हार्ट अटैक आने का चांस 3 गुना है। और अगर दोनों है तो 3 + 2 नहीं, 3 गुना 2 तो 6 गुना है। अब इसमें आप ये सब ऐड करते जाओ और फिर बोलो मेरे को हार्ट अटैक क्यों आ गया, मैं तो सब दौड़ता था, मैं तो, मेरे फादर मदर तो 90 तक जिए, मेरे को 40 पे अटैक कैसे आ गया। आप ही सोचो कि फादर मदर क्या करते थे और आपने क्या किया कि आपको 40 पे आ गया। और क्या हो सकते हैं रिस्क फैक्टर? आप किसी ने कहा फैमिली हिस्ट्री, आप ये ऐसा कहते हैं, आप माँ बाप से शकल सूरत लेते हो, माँ बाप से बुद्धि भी लेते हो, पैसे तो लेते ही हो, प्रॉपर्टी भी लेते हो, तो बीमारी तो मिलेगी ना, थोड़ा तो इंटरेस्ट आएगा साथ में। तो आप ये नहीं बोल सकते कि मेरे को क्यों, माँ बाप थोड़ी बदलो, वो तो खून है, तो आपके खून में ही है। तो हम ये बोलते हैं कि भाई हमारे के साथ, मैं तो रोज मैराथन दौड़ता था, मेरे को कुछ नहीं था, क्यों हो गया? पापा को था, मदर को था। तो माटी खराब होती, वावेतर सारू होतं पण माटीच खराब होती, जेनेटिक। तो यू नीड टू चेंज, तो वावेतर વધારે સારું और बेहतर मेहनत करनी पड़ेगी, आप खून नहीं बदल सकते। तो फैमिली हिस्ट्री एक इंपॉर्टेंट। तो यदि आपको फैमिली में है और ये इनमें से कोई रिस्क फैक्टर है तो आपको ज्यादा सजग होने की जरूरत है। ऑफ कोर्स बाकी हमने फैक्टर्स गिने जो काफी कई लोगों ने बताया। और क्या हो सकता है? नींद कम होना, तो 6 से 8 घंटा नींद होनी चाहिए। अति, फिर वही, आप 12 घंटे सोता हो तो फिर क्या होगा? पेट फूल जाएगा, फिर वजन बढ़ जाएगा। तो एक कारण वजन बढ़ना भी है, ओबेसिटी भी एक रिस्क फैक्टर है कि जिसका वजन ज्यादा उसको हार्ट अटैक का जोखिम ज्यादा। तो नींद एक रिस्क फैक्टर उस स्टडी में नहीं पाया गया था, पर वजन ज्यादा पाया गया था। ओबेसिटी भी एक रिस्क फैक्टर है। और स्ट्रेस, आपने बिल्कुल बताया कि स्ट्रेस एक रिस्क फैक्टर है। तो अगर आपको रिस्क फैक्टर्स है तो क्या करना चाहिए? बीपी चेक कराएं, कोलेस्ट्रॉल मापें, ईसीजी, इको, टीएमटी, एक्सरे। ये सभी को सब कुछ कराने के लिए हेल्थ, अभी बहुत मरीज आते हैं, वो मेरा वो था, उसको वो था, वो क्रिकेट खेलना चला गया, इसलिए मैं 28 का हूं, मेरे भी एंजियोग्राफी कर दो। मैंने कहा भाई क्यों एंजियोग्राफी करवाना, मेरे पास वैसे ही बहुत काम है, तू और एक बेकार में अननेसेसरी एंजियोग्राफी मत करवा। वो ऐसे ही कहते हैं कि भाई अगर आप सुनार के पास जाओगे और बोलोगे मेरे को सोने के जूते चाहिए तो बना के दे देगा, उसको क्या पड़ी है मना करने की? भाई हाल ले, तो सोने के भी जूते रखता हूं, चाहिए जूते तो उससे ही लेने जो मोची का काम करे। तो चेकअप कराएं एंजियोग्राफी से, कराने से, क्योंकि मैंने ऐसे भी मरीज देखे हैं जो एंजियोग्राफी करा के आए, दर्द था, एंजियोग्राफी नॉर्मल थी, 3 दिन बाद हार्ट अटैक। क्यों? क्योंकि एंजियोग्राफी में नलियां जो थी, चर्बी अंदर दबी थी, ब्लॉक नहीं थी, 3 दिन बाद वो चिप और फिर हार्ट अटैक। एंजियोग्राफी नॉर्मल थी, कैसे चलेगा? ऐसे चलेगा। क्योंकि यदि आपने उसका विज्ञान नहीं समझा तो आप उसको, जैसे ओम का अर्थ नहीं समझा और सिर्फ ओम ओम करते रहे तो कैसे चलेगा? आप ओम समझोगे तो समझ में आएगा ना। पहले सर ओम तो खूब करता हूं, उनके लगता नहीं है, कैसे लगेगा? समझ तो होनी। वही विज्ञान की बात है। आप स्पाइनल लेवल पे नहीं चल सकते, आपको सेरेब्रल लेवल होना होगा। तो इन जांचों के अलावा आगे ये आप जानते हैं, ईसीजी, एको, ईसीजी है हार्ट की इलेक्ट्रिकल सर्किट चेक। नेक्स्ट और इस तरह से ईसीजी दिखता है। अब कई लोग बोलते सर हमें समझाओ, 12 साल लगते हैं, पर फिर भी सिर्फ डूंगर होना चाहिए, कहीं खड्डा नहीं होना चाहिए, ऐसा हम समझा देते हैं। सब ऊपर होना चाहिए, एक को छोड़ के कहीं पे भी नीचे है मतलब गड़बड़ है। तो नेक्स्ट, तो ये हम बेसिक स्टूडेंट्स होल्टर यानी धड़कन की नियमितता जांचने की प्रक्रिया। नेक्स्ट, और इको यानी दिल की सोनोग्राफी, दिल के बाल ठीक है, पंपिंग कैसा है, हार्ट कैसा चल रहा है। नेक्स्ट, कुछ इस तरह से कलरिंग में दिखता है। डॉक्टर इफेक्ट, जो फिजिक्स पढ़ने वाले लोग हैं वो समझते होंगे, जो नजदीक आता है उसका कलर अलग होता है, दूर जाता है उसका कलर अलग होता है। उसी तरह से खून आगे आ रहा है कि पीछे जा रहा है, वो इसमें दिख जाता है। नेक्स्ट, और ट्रेडमिल पट्टे पर चल के, अब मैं बैठा रहता हूं तो कुछ नहीं होता है, चलता हूं तो दर्द होता है, तो हम वही चला के आपको देख लेते हैं कि खून कम जा रहा है नहीं जा रहा है, वही ट्रेडमिल। अगला,
और बहुत सारे स्कैन होते हैं इंक्लूडिंग एंजियोग्राफी, आजकल सीटी एंजियो है, सीटी स्कैन होने लग गया। नेक्स्ट एक्सरे पे आप देख सकते हो दिल की पोजीशन क्या है, साइज क्या है, चौड़ा तो नहीं हो रहा। नेक्स्ट और एंजियोग्राफी जो हम करते हैं, जो हाथ से नली डाल के दिल तक जाकर डाई देकर, ग्राफी है ना, फोटोग्राफी। एंजियो मींस नली, नली की फोटोग्राफी है। तो आप दिल की नली को देख रहे हो अंदर से कि नली चौड़ी है कि बंद है, खुली है कि बंद है, सिकुड़ रही है कि चर्बी जमी है कि नहीं। नेक्स्ट और किस तरह से, या तो पैर से डाल के की जाए या हाथ से दी जाए, पहुंचना आपको दिल तक है। मस्तिष्क से पहुंचो या कलम से पहुंचो, पहुंचना दिल तक। आगे तो इस तरह से आपने वही ब्लॉक जो मैंने पहले आपको दिखाया वहां तक पहुंच के डाई दी, और वही नली जहां चर्बी जम रही थी आपको सकड़ी दिखी, जो कि एंजियोग्राफी में एक ब्लॉक दिखा रही। नेक्स्ट और कोलेस्ट्रॉल। नेक्स्ट ये अभी हम चर्चा कर चुके हैं, कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए, कितना, तो किसका प्रकार। नेक्स्ट कितना हो। अल्कोहल की बात रह गई, गुजरात तो ड्राई स्टेट है, मिलती नहीं। तो अल्कोहल एक ऐसा कहते थे अंग्रेजों ने कहा कि कम पीने में अच्छा रहता है, पर वो बात कर रहे थे, तुलना कर रहे थे जो बहुत पीते हैं उनसे। हम जो नहीं पीते हैं वो अगर शुरू कर दें इस बहाने की थोड़ा पीने से फायदा होता है, तो वो उसका गलत इंटरप्रिटेशन। और इसी में जब इंडियंस को कंपेयर किया गया तो ये पाया गया कि जो इंडियंस हैं उन लोगों को अल्कोहल से नुकसान है। तो अल्कोहल हार्ट के लिए प्रोटेक्टिव, चाहे वो रेड वाइन भी हो नहीं है। और इसलिए अब हेल्थ ग्राउंड पे अल्कोहल पीने का मेडिकल सर्टिफिकेट मिलना भी बंद हो गया है या हो जाना चाहिए। नेक्स्ट और फैमिली हिस्ट्री। नेक्स्ट कोलेस्ट्रॉल कैसे कंट्रोल करें, तो खुराक मैंने तो बताया आपको, सेवन क्या करें, तो अब मतलब आप थोड़ा सा घास फूस ही खाएं, नहीं आप प्रोटीन खाएं। प्रोटीन 40 क्रॉस होने के बाद एक बहुत जरूरी सप्लीमेंट है, क्योंकि अगर आपके शरीर में एनर्जी नहीं जा रही है तो आपकी मसल यूज हो जाती है एनर्जी बनाने में। तो बोलते हैं ना 40 के बाद सुखा गए, पतले होने लग गए, झुक गए। क्यों? क्योंकि प्रोटीन बॉडी ने यूज कर लिया एनर्जी बनाने के लिए, आपने प्रोटीन रिप्लेस नहीं किया। प्रोटीन कहां से पाए? नॉनवेज जरूरी नहीं, बहुत खुराक है वेजिटेरियन जो प्रोटीन देते हैं, टोफू, दाल, हर खुराक में एक कटोरी दाल, शाम को एक दाल, एक कटोरी सत्तू, रात को एक कटोरी दाल, चना, राजमा, छोले। यूरिक एसिड बढ़े तो प्रोटीन ना बढ़े। यूरिक एसिड क्यों बढ़ता है, ये भी बड़ी बात है। यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो आप नहीं ले सकते प्रोटीन, पर दिक्कत क्या होती है, यूरिक एसिड दो चीजों से बढ़ता है। यूरिक एसिड है क्या, क्या है यूरिक एसिड? यूरिक एसिड आपके बॉडी द्वारा प्रोटीन को यूज करके बनाया गया उसका कचरा है। आपकी बॉडी ने आपके प्रोटीन को जलाकर एनर्जी बनाई। क्यों बनाई? क्योंकि आप उसको प्रोटीन गलत प्रकार का दिया या आपने कार्बोहाइड्रेट ज्यादा दे दिया। और अगर आपको जेनेटिक है तो बात अलग है, जेनेटिक भी होता है जिसमें उसकी दवाई दी जाती है। अब दवाई लेने के बाद भी आप बोलो नहीं आपको दाल नहीं खानी है, ये गलत। अगर आप फेबुक्सोस्टैट या लोपिरिनॉल ले रहे हैं तो आप बिल्कुल उसके साथ खा सकते हैं, बंद नहीं करना। ये उनके लिए है जो नॉनवेज खाते हैं। अब नॉनवेज खाते ही नहीं है और बोलो दाल भी मत खाओ और सिर्फ फैट फैट खाओ, तो आदमी कैसे रहेगा? और यूरिक एसिड का एक सबसे बड़ी भ्रांति है, इस पूरे मेडिकल साइंस की सबसे बड़ी भ्रांति जो है वो यही है कि आप रिपोर्टों का इलाज कर रहे हो, मरीज का इलाज कौन कर रहा है? यूरिक एसिड 8 आया, दवाई खाओ। वो बोल रहा है सर मेरे तो यहाँ पे नाक में खुजली आ रही, नहीं यूरिक एसिड 8 आया, दवाई खाओ। अरे और मेरे अंगूठा दर्द नहीं कर रहा, मेरे पथरी हुई नहीं है, तो यूरिक एसिड 8 से नीचे दवा खाने की जरूरत नहीं होती है। ये मेरे मन से नहीं बोल रहा, किताबों में लिखा, मेडिकल साइंस की बुक में लिखा। वही चीज कोलेस्ट्रॉल पे लागू होती है। कोलेस्ट्रॉल अगर आपका नलियों में जम रहा है तो आपका कोलेस्ट्रॉल मुझे 70 से नीचे चाहिए, लेकिन यही कैल्शियम अगर आपकी नलियों में नहीं जम रहा है तो 130 भी चलता है, दुगना एलडीएच। तो और किसको चाहिए? वो 28 साल का लड़का आता है, सर मेरा कोलेस्ट्रॉल देख लो 160, गोली चालू करो। क्यों?
किस अभ्यास में पाया गया, किस स्टडी में पाया गया? सभी स्टडीज में क्या पाया गया? 40 के बाद। तो 40 के नीचे कितने लोग कोलेस्ट्रॉल की गोली खा रहे हैं? बहुत सारे खा रहे हैं। क्यों खा रहे हैं? बस डॉक्टर साहब ने बोला कोलेस्ट्रॉल हाई गोली खा। यहां एप्लीकेशन ऑफ माइंड जरूरी है। मैं इसलिए बोलता हूं कि डॉक्टर एक सिर्फ रिपोर्ट का इलाज नहीं करता है, व्यक्ति का इलाज करता है। आप एक मरीज डायबिटीज का जिसको कि हार्ट फेलियर है और एक मरीज डायबिटीज का जिसको कि पैर में गैंग्रीन है, दोनों की दवाइयां अलग है। आप बोलोगे डायबिटीज की गोली खा रहा हूं, अगर ऐसा ही होता तो फार्मासिस्ट क्या बुरा था? डॉक्टर बिठाने की जरूरत क्या है? फार्मेसी स्टोर पे रखो, उसको बोलो ये डायबिटीज में इसमें से भी आंख बंद करके निकाल के दे देना, ये सर्दी में दे देना, ये बुखार में दे देना, ये बीपी में दे देना, ये कोलेस्ट्रॉल में दे देना। क्योंकि इंडिविजुअलाइज्ड मेडिसिन। आज कमल शर्मा का के में डबल ए अगर आएगा, स्पेलिंग चेंज कराने में अगर आप विज्ञान ढूंढते हो तो दवाई में तो जरूर होना चाहिए। आप नाम में भी नहीं, आपकी अगर डेट ऑफ बर्थ ये है तो उसमें के में 2 के होने चाहिए। अगर डेट ऑफ बर्थ से आप नाम में स्पेलिंग ढूंढ रहे हो तो दवाई कैसे एक हो सकती है 2 कमल शर्मा? तो इंडिविजुअलाइज्ड मेडिसिन आपके मात्र रिपोर्ट से, मैं ये नहीं कह रहा रिपोर्टों को मत काटो, रिपोर्ट जरूर देखो लेकिन मरीज का परिप्रेक्ष्य देखो। एक वही मरीज जो बहुत चला डी डाइमर कोरोना में, सर मेरा डी डाइमर मैंने खून पतले की खा ली, फिर क्या हुआ? 2-4 को एवरेज हो गया। क्यों? नहीं वो पढ़ा था जिसको डी डाइमर ज्यादा होता है उसको खून पतला करना, ऐसा नहीं होता। डी डाइमर किडनी पे के बलों से चलता है, वजन से चलता है, उम्र से चलता है। 20 साल के आदमी का डी डाइमर 200 होना चाहिए, तो 80 साल के आदमी का 800 होना चाहिए। वो 80 साल का आदमी 400 डी डाइमर पे भी ब्लड थिनर खा रहा था और फिर अपर डी से ब्लीडिंग कर रहा था। दिक्कत वही, वो जैसे कहते हैं ओम को देखने का नजरिया आपका क्या था? किसी को एक बहुत बड़ी कहानी है जो मैं हर बार कई बार कहता हूं, हाथी और 4 अंधे आदमी। आई एम श्योर दीदी ने कभी सुनाई होगी। और हाथी एक कमरे में था और उसमें 4 अंधे आदमी थे। एक के हाथ में सूंड आई, उसने क्या बोला? हाँ। एक पूछ आई, वो बोला तो सांप है। एक के हाथ में पैर आया, बोले तो खंबा है। एक के हाथ में कान आया, बोलता सुपड़ा है। था क्या? वही दिक्कत आज मेडिकल साइंस में हो गई। ये ब्लॉक मैं कर दूंगा, बाकी मेरे को पता नहीं। तेरी किडनी का पथरी मैं निकाल दूंगा, बाकी मेरे को पता नहीं। वो बोलता सर तुम मेरी किडनी निकाल लो, तुम मेरा हार्ट ठीक कर दो, तुम मैं कर दो, बाकी मेरे मन का कहा? तो मन के लिए आओ। ओम शांति। ओम शांति। यस, क्वेश्चन है। हमारे घर में ઊંધો કેસ છે કે ચેસ્ટ પેન હતું, પછી કેલ્શિયમનો રિપોર્ટ આવ્યો તો કેલ્શિયમ થોડું વધારે આવ્યું, પછી થોડા વખત એમને ચેસ્ટ પેન રેગ્યુલર થતું હતું 8-10 દિવસ, પછી એન્જિયોગ્રાફી કરાવી તો એમાં આર્ટરી બ્લોકેજની બદલે વધારે પડતી ફૂલી ગઈ। હા, તો એના માટે ચરબી અંદર ના જામે અને બહાર ની જામે તો શું થાય? લોહી આમ ફરે છે, પાઇપ દર ફેરી અંદર સંકોચાય જરૂર નથી, બહાર ફાટે બી છે ને। તમારા કેટલી બધી 10-12 ગોળી કોલેસ્ટ્રોલની ચાલુ કરાવી દીધી, ત્યાં તમારે 6 મહિના એને એક્ટેસિયા કહેવાય। કોલેસ્ટ્રોલ કાબુમાં રાખવું જરૂરી છે। છેદ ચરબી જામવાની પ્રક્રિયા પણ એ આનુવાંશિક બી હોઈ શકે, વારસાગત બી હોઈ શકે। એક ફેમિલી એક આખી એની છે, જે એક મારો અસિસ્ટન્ટ ડોક્ટર હતો, એની પોતાની, એની, એના પપ્પાની, એના ભાઈની, એના મમ્મીની, બધાની નળીઓ જે આપો છો હા, એટલે તમારી મોડી થઈ એ ગઈ હજાર એક ના હોય, 105 ને 105 ને જેને ચરબી જામેલી હોય એના માટે અત્યારે ચાલુ જ છે દવા કોલેસ્ટ્રોલની લેવાની, બ્લડ થિનરની નહીં લેવાની, અને કોલેસ્ટ્રોલની લેવલ પ્રમાણે ચાલવાનું। कहते हैं कि व्हीट और राइस में शुगर बहुत होता है। कार्बोहाइड्रेट होता है, किसी भी कार्बोहाइड्रेट को आप डाइजेस्ट करते हो तो शुगर बनता है। तो बोले अभी मिलेट्स लो, मिलेट्स में प्रोटीन होता है, तो उस तरह से वो सब्स्टिट्यूशन सही है। तो बात वही है, हम फैट वाला इतना है ही नहीं, इसीलिए आप अपने बड़े बूढ़ों से बोलोगे मैं तो भूख आएगा घी खाता हूं, कुछ नहीं हुआ, ये रहा तुम्हारे सामने देखो। क्यों? क्योंकि वो ओवर ईटिंग घी की नहीं करते,
घी तो प्रपोर्शन में चलता है, दिक्कत होती है कार्बोहाइड्रेट। आप कार्बोहाइड्रेट का क्या सोचो, सुबह उठते हो क्या खाते हो? ब्रेड। क्या है ये कार्बोहाइड्रेट? खाने में क्या खाते हो? 2 रोटी